Welcome to the channel again, and let's start up with the properties of hydrochloric acid. Physical properties, again we have studied previously. Color is colorless, smell is pungent smell, pungent choking. अगर आपके गले में जाएगा या फिर कहीं पर lungs में वहाँ choke करेगा, you will not be able to breathe properly. और taste sour होता है. Generally acids have sour taste, while base have saltish or bitter taste. Okay, you need to remember the taste. Acids means sour and bases means saltish or bitter taste. Okay, and effect on skin: concentrated acid is corrosive and causes blisters on the skin. Blisters means boils कर देता है, बड़े बड़े छाले on the skin when it falls on the concentrated जब fall करता है ये इस टाइप का, तभी blisters होते हैं. वरना you need to retain keep yourself away from the acid while performing the take all precautions. But yes, concentrated does much harm than dilute HCl. So solubility, readily soluble in water in all proportion, and boiling point or azeotrope का mixture, or you can write here also constant boiling mixture. Just write here also constant boiling mixture, because here it is written volatile acid का constant boiling mixture, यानी ये अपना ये HCl का है 110 degrees Celsius. Coming to the nature, important chemical reaction. Just try to remember the logic behind every chemical reaction, and then only you will be able to perform or write very good equations in your answer sheet without dissolving those in your mind or mixing up those. So come on, let's start again. Nature: aqueous solution is strongly acidic. Yes, I told you previously it's on strongly acid, because aqueous means concentrated में मतलब dilute में मतलब वहाँ पे हमने बहुत सारा पानी भी है और एसिड भी है, तो एक्सप्लोसिव भी हो जाएगा और एसिडिक भी हो जाएगा, बहुत सारा गैस भी उसके बाहर निकलेगी. मतलब ऐसा कि किसी गर्म पे व्हेन यू पुट सम वाटर देन सम गैसेज ऑल्सो कम्स आउट, धुआं भी आता है बाहर, थोड़ा एक्सप्लोजन भी होगी उसमें. रिएक्शन तो एक्सप्लोजन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट्स वाई इट इज स्ट्रांगली एसिड. ऐसे ये होता है. ऐसा इंडिकेटर में हमारे 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. ऑलवेज रिमेंबर लिटमस, दैट इज यू ऑलवेज नो, वी हैव परफॉर्म्ड इन फाउंटेन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो. या 3 लिटमस, ब्लू टू रेड लिटमस हो जाता है. एंड देन अदर 2 टाइप्स ऑफ लिटमस था मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन. मिथाइल ऑरेंज and phenolphthalein, remember these two. And spelling is also very must thing, because if you will not remember the spelling, and if you will make out a spelling mistake, then they might cause a problem in getting full marks. Okay, so moist litmus, blue to red, remember it. And this will be a case for all acids. This will be a case for all acids, and this will be and vice versa for all bases, and vice versa for all bases. Okay, so methyl orange is orange to pink, and phenolphthalein is colorless to colorless only. Phenolphthalein remains colorless in case of acid. You need to remember then only 2 things only. Blue to red, that's the easy thing, and orange to pink in methyl orange, that's the case in all acids. एंड इट्स और इसका उल्टा रेड टू ब्लू हो जाएगा हमारा ये इसमें बेसिस में, और पिंक टू ऑरेंज हो जाएगा. आई थिंक यस, हाँ बेसिस में जाएगा. और फिनोफ्थलीन आई थिंक कलरलेस टू आई थिंक ये पिंक हो जाता है. आई थिंक अभी वी विल स्टडी फर्दर, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है, बट येस यू विल स्टडी फर्दर तो आ जाएगा. फिर एक्शन ऑन मेटल्स: हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स. सी द सेम थिंग विच वी स्टडीड further is which we studied here. Displacement reaction: A plus B, ABC gives AC plus B. See the logic behind. जैसे अगर आपने यहाँ पे लॉजिक याद कर लिया तो वहाँ पे it will be a very small revision kind of thing. A plus BC gives AC plus B. CA plus C, I am keeping my hand here, and that will be I am promising to give out a correct equation. CA plus 2HCl gives CaCl2 plus H2. Mg plus 2HCl gives MgCl2 plus H2, and Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus 2H2. See here, you may underline it. Mg के संग HCl2 आ जाएगा और यहाँ पे 2HCl. अभी Cl2 कैसा है, अगर आपको मान लो इसका फॉर्मूला बनाना नहीं आता है, देन यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ लग जाएगा इसके नीचे इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, और यहाँ पे H2 हो जाएगा. मतलब एक स्मॉल सा, वैसे आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं आता है और शॉर्टकट चाहिए, देन यू कैन डू लाइक दिस. बट दिस विल नॉट टेंड और लास्ट मोर until and unless you will learn the formula. You need to remember the formula with their valencies. So सी ये सेम लॉजिक था, मैंने बिल्कुल सही इक्वेशन बनाया, और ऐसे ही आपको बनाने हैं. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नीड टू रिमेंबर इट.
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब आएगा यहाँ एक्शन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स. इट रिएक्ट्स विद ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली. अब इसमें आएगा हमारा यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे कर लो आप. अब व्हाट यू विल आस्क व्हाट विल हैपन डबल डिस्प्लेसमेंट. Mg के संग तो Cl2 जुड़ ही जाएगा. यहाँ H2 है तो यहाँ H2 के साथ O यहाँ लग जाएगा. ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे. यानी हमारा यहाँ पे मेन लॉजिक होता है AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC. यानी Mg प्लस Cl2 MgO प्लस H2HCl gives MgCl2 प्लस H2O. ZnO में gives ZnCl2 प्लस H2O. FeO में FeCl2 तो H2O. और यहाँ पे वैलेंसी Fe की वेरिएबल वैलेंसी होती है, आप सबको पता होगा. एक की 2 एक की 3. तो यहाँ पे Fe की वैलेंसी यहाँ 3 है तो FeCl3 प्लस H2O वो भी बैलेंसिंग करेंगे आप. ओके, सो लाइक दिस सारे इक्वेशंस हो जाएंगे. यू नीड डोंट रिमेंबर ऑल द इक्वेशन, ओनली रिमेंबर द लॉजिक. और किसके साथ होता है ये ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट होता है. 2 इक्वेशन, जस्ट लर्न ओनली 2 एग्जाम्पल्स. यू विल लर्न ऑल बाय हार्ट. उसी के साथ सारे याद हो जाएंगे. और ये जो एक्शन ऑन मेटल्स के साथ आपका डिस्प्लेसमेंट होता है. 2 एग्जाम्पल याद करो और बाकी के सारे आपके अपने होते जाएंगे. क्रिएट 1 टेबल, राइट विद मेटल्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 इक्वेशन, then write hydroxides and oxides, then write double displacement reaction and then write 2 examples of it. Then as soon as we come further इसके साथ आते जाएंगे. उस टेबल में ऐड करते जाओगे तभी आपके ये रिएक्शन सही से और आगे बढ़ पाएंगे. अदरवाइज यू विल कम अप टू मिक्स अप दिस रिएक्शन, एंड इफ यू विल मिक्स अप then you will write wrong, and write wrong means losing marks that none of us wanted. And that's why you need to create 1 table, write the type of reaction, 2 examples of every chapter, and just revise it at every regular interval. In a day or 2 revise it, look upon it, and then only you will come up to solve each reaction. Okay, so coming back to the point, with salts of weaker acids होते हैं सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स यानी HCO3 होते हैं. कार्बोनेट्स यानी CO3 2- होते हैं. सल्फाइड्स SO3 2- होते हैं. सल्फाइड्स SO2- होते हैं. ये सब S2- होते हैं. तो ये सब इनके साथ भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. इसमें होगा 2NaCl प्लस CaO प्लस CO2 प्लस H2O. अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स यहाँ बना होगा और उसके बाद यहाँ पे 2HCl के साथ मतलब कोई भी एसिड होगा वहाँ उसके साथ रिएक्ट करा के आपको यू नीड टू ब्रेक अ वेरी बिग कंपाउंड. जैसे यहाँ पे अगर आपको एक मैं लॉजिक बताती हूँ, जैसे यहाँ Na2CO3 है तो यहाँ पे Na के साथ एक कंपाउंड बनेगा. जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. कंपाउंड विल बी मेड आउट ऑफ Na, and then another compound will be made out of here with CO2, and that's like CO2 या फिर C, या फिर आप you can write it at कि यहाँ पे C बनेगा और एक कंपाउंड O के साथ बनेगा. ठीक है. और एक कंपाउंड अगर कोई एसिड है जैसे H2SO4 है तो यहाँ पे हमारा H2O प्लस SO2 बनेगा. ऐसा कुछ मतलब H2O तो बनेगा ही. हमारा कोई भी एसिड है तो H2O तो बनेगा ही. और बाकी उसके संग जो एसिड है जो या फिर जो मेटल वगैरह हमने लिया होगा या फिर उसका कोई भी मिक्सचर लिया होगा या फिर मतलब मिक्सचर से कार्बोनेट लिया होगा या बाइकार्बोनेट लिया होगा तो वो हम उसके संग H2O प्लस SO2 प्लस ऐसे करके और या CO2 या जो कुछ भी है हमारे साथ बनता जाएगा. अब जैसे मैंने आपको ये इस इक्वेशन का एग्जाम्पल बताऊँ, Na2CO3 का है, Na2SO4 बनेगा. ये डबल डिस्प्लेसमेंट है. इसमें सब में डबल डिस्प्लेसमेंट होता है. बस आपको इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करना होता है. अगर C दे रखा है तो CO तो ज़रूर बनेगा. CO2 S दे रखा है. अगर यहाँ पे Na2SO3 दिया रखा होता तो यहाँ पे SO2 बनता. ओके. एंड ऐसे करके आप बनाते जाएंगे. जैसे CO2 के साथ CO3 होगा तो CO2 बनेगा. SO3 होगा या SO2 होगा तो सल्फाइड होगा तो SO2 बनेगा. और सल्फेट होगा तो भी SO2 ही बनेगा. एंड और बाकी आपको उसके एसिड पे भी ध्यान देना है जिस एसिड के साथ वो रिएक्ट हो रहा है.
ओके, सो यहाँ पे CaCO3 प्लस 2HCl गिव CaCl2 प्लस H2O प्लस O2। अब CaCl2 तो आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बाकी H2O और CO2 मैंने क्या कहा, CO3 के साथ CO2 हमेशा बनता है, रिमेंबर CO2 और H2, और अगर आपको किसी HCl या H2SO4 जिसके साथ भी रिएक्ट कराया है तो H2O तो बनेगा ही, ज़रूर बनेगा, और बाकी जो प्रोडक्ट है Cl है तो CaCl2, यहाँ पे H2SO4 होता तो यहाँ पे CaSO4 होता, ऐसे करके आप बना देंगे। अब जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस 2HCl, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, CaCl2 तो बना ही देंगे, फिर H2O भी बना देंगे और फिर CO2 भी बना देंगे। अब बचा क्या काम, जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा तो आपको बस सिर्फ बैलेंसिंग करनी होगी। ये मत सोचना कोई और कंपाउंड बनेगा या कुछ और बनेगा, नो, प्रोडक्ट्स आपके वही बनेंगे, H2O CO2 प्लस एनी मेटल क्लोराइड या मेटल या फिर सल्फेट, जो भी यहाँ पे अगर H2SO4 दे रखा हो। लेकिन बस आपको क्या करना होगा, अगर बहुत सारा यहाँ पे कंपाउंड्स ऐसे करके दे रखा है तो फिर आपको यहाँ पे फिर बैलेंसिंग ज़्यादा अच्छी और बड़ी करनी पड़ेगी, बस ये है। यस, अब जैसे मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट समझाया, Na2 यहाँ पे आ गया हमारा Na2SO3 और प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl, तो आपको पता है, सबको पता चल गया होगा अभी तक कि 2NaCl कैसे बना। फिर H2O बनेगा और प्लस SO2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे SO3 था, अब सब में SO3 है तो यहाँ पे सब में SO2 बनता जाएगा, और बाकी कोई मेटल क्लोराइड तो बनेगा ही। अगर यहाँ पे H2SO4 होता तो वो SO4 बनता है, उस हिसाब से बैलेंस हो जाती है इक्वेशन, जैसे भी होता। लेकिन अभी कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, यहाँ पे HCl है तो यहाँ मेटल क्लोराइड बनेगा, NaCl बनेगा, KCl बनेगा, यहाँ पे फिर से NaCl बनेगा या फिर MgCl2 बनेगा। बैलेंसिंग आप लोग खुद करेंगे, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, और फिर इस बार जैसे K2Cl है तो यहाँ पे 2KCl तो हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Cl भी 2 है, यहाँ पे K भी 2 है, तो यहाँ पे 2KCl हो जाएगा। लाइक दिस शॉर्टकट वे, जस्ट फाइंड अ गुड वे ऑफ डूइंग योर एग्जाम वेरी क्लियरली, properly, and that too accuracy should be the main point। एंड देन मेटल सल्फाइड के साथ Na2S प्लस 2HCl 2NaCl प्लस H2S, यहाँ सल्फाइड होगा तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा H2S, और ऐसे आपके पास एक रिएक्शन आ सकता है, गिव अ रिएक्शन, जस्ट राइट डाउन दिस पॉइंट, या फिर क्वेश्चन एक लिख लो, गिव अ रिएक्शन इन विच a metal sulfide reacts with any acid, या फिर डायरेक्टली they might give reacts with hydrochloric acid to gives a pungent choking smell gas, or give a reaction in which a rotten egg smell, sorry, this is the gas of rotten egg. Give a reaction in which a rotten egg smell gas is evolving, or give a reaction of any sulfide with HCl or with hydrochloric acid in which a rotten egg smell gas is evolving. And you need to remember what is rotten egg smell gas is H2S. So here also FeS के साथ भी same reaction हो रहा है, H2S FeCl2 with H2S बना है, क्योंकि यहाँ पे Fe की वैलेंसी 2 थी और S की वैलेंसी भी 2 थी, 2 कैंसिल हो गया, FeS का फॉर्मूला बन गया, एंड FeCl2 प्लस H2S बन गया। कमिंग टू द note here, dilute hydrochloric acid reacts with thiosulfates. Now what is thiosulfate? A formula with Na2S2O3 thiosulfate, just remember it. No need to find a great logic behind it. It's in higher classes, only just remember it, thiosulfate Na2S2O3, and to produce sulfur dioxide gas and yellow sulfur is precipitated. This is a great reaction, need to remember, very important reaction। कोई reaction का logic, ये इस reaction का इतना logic आपको समझना होगा, क्योंकि Na2NaCl तो बनेगा, अगर S है तो SO2 भी बनेगा, H2O भी बनेगा, 2NaCl भी बनेगा। बस इसमें एडिशनल क्या होगा, जब यहाँ पे एक S है और यहाँ पे 2 S हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, इंस्टेड वी विल राइट 1 S only here in order to give out a, यहाँ पे वो भी S ऐसा जो येलो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा, येलो प्रोडक्ट यानी इसका कलर येलो है, प्रेसिपिटेट एज येलो है ये। ओके, सो यहाँ पे रिएक्शन distinguishes thiosulfates and sulfides as sulfur is not precipitated when sulfides treated with dilute HCl. Some reaction like this which might come as a test, in order to test the thing, that give a test or give a reaction in which distinguishes between sulfides
thiosulfides and sulfides, because in thiosulfide sulfur is precipitated, while in sulfide sulfur is not precipitated, it only forms SO2, and at SO2 the reaction stops, while in thiosulfides the reaction does not stop, it gives out a yellow precipitate called as S, or sulfur is precipitated as yellow precipitate. So like this you need to remember. Another reaction, precipitation reaction, dilute HCl does not normally react with nitrates. You need to remember these two नेम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड का नेम याद करो. लेड नाइट्रेट एंड मर्क्यूरी 1 नाइट्रेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड एंड मर्क्यूरी 1 क्लोराइड. तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगा. सब में ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. बस आपको लॉजिक में ध्यान होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे करना है, और फिर बाकी बाद में आपको बैलेंस करना आना चाहिए बस. प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड डिजॉल्व्स ऑन हीटिंग. लेड क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, इसकी अब आपका आ सकता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लेड नाइट्रेट एंड मर्क्यूरी नाइट्रेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड एंड मर्क्यूरी 1 क्लोराइड. अब ऐसा कौन सा डाइल्यूट HCl डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रेट, ये उसका पेक्यूलर नेचर है. अब इस पेक्यूलर नेचर को अपोज करने के लिए कौन से दो एसिड्स का नेम ऐसा हम देंगे, which two acids name will be there in order to give out a great chemical reaction. मतलब great means a reaction in which it is shown it is declining this peculiar nature. तो उसमें आप ये दो chemical reaction दे देंगे, और जिसका इसका साथ में PbCl2 जो भी देगा इसका एग्जाम्पल, वो उसके साथ उसका peculiar nature एक एक्स्ट्रा लिख के आएगा कि लेड क्लोराइड जो होता है वो डिजॉल्व कर जाता है हीटिंग पे. देखो याद तो करना पड़ेगा, बट लॉजिक के साथ याद करो, देन इट विल बी अ थिंग टू हैव fun also कि with chemistry, with chemical reaction you will be here, it will be at mind, it will be a ease to learn these reactions, and क्योंकि logic के साथ you will be able to perform it more quickly and just with accuracy. And silver nitrate solution reacts with hydrochloric acid. This must also you have learned in smaller classes. AgCl plus NH2 NH4OH AgNO3 AgCl plus HNO3. इनसॉल्युबल है निट्रिक एसिड बट सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डायमाइन सिल्वर क्लोराइड. ये आपका सारा एनालिटिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, जस्ट ओनली रीड इट. इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ओनली इसका पेक्यूलर नेचर ये है कि एक्सपोज टू सनलाइट, व्हेन एक्सपोज टू सिल्वर 1 क्लोराइड यानी AgCl ब्लैकन्स हो जाता है. यहाँ पे रिएक्शन, बस ये रिएक्शन अच्छे से याद कर लो कि व्हाट्स द पेक्यूलर नेचर अबाउट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हेयर प्रोडक्ट. यहाँ पे जो इनसेलुलर प्रेसिपिटेट होता है, यहाँ पे जो फॉर्म होता है, इसका पेक्यूलर नेचर कुछ बताओ ऐसा कुछ इसके बारे में, जब एक्सपोज होता है सनलाइट को, या फिर इसका ही सिर्फ या राइट द इक्वेशन इन विच थिक वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आउट ऑफ सिल्वर बाय यूजिंग सिल्वर, एंड व्हाट्स द पेक्यूलर नेचर अबाउट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड. तो उसका ये तुम आप लोग शो कर दोगे, ठीक है. एंड AgNO3 इज यूज फॉर टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑल्सो फॉर क्लोराइड आयन. ये आपको इंपॉर्टेंट है रिमेंबर. जैसे यहाँ पे आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन थायोसल्फेट्स एंड सल्फाइड्स. आप लिखोगे कि सल्फर कब फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट होता है, कब कब नहीं होता है, ऐसे यहाँ पे लिखोगे यूज ऑफ द टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑल्सो फॉर क्लोराइड आयन. ओके, सो यहाँ पे ये तो है नहीं सिलेबस में. आप ये देखो MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2, ये आगे भी होंगे रिएक्शन. ये सारे रिएक्शन ऐसे ही हैं, ये अच्छे से याद कर लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड CaOCl2 प्लस 2HCl गिव्स ऑन हीटिंग CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है. ब्लीचिंग पाउडर है ये. आपके पास रिएक्शन आ सकता है, रिएक्शन विद ब्लीचिंग पाउडर ऑफ एनी काइंड ऑफ एसिड तो जनरली आप HCl ही लेंगे. जब यहाँ पे याद करेंगे तो CaOCl2 होगा प्लस 2HCl गिव CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2. अब यहाँ पे प्रीवियसली ऑन द प्रीवियस पेजेस वी स्टडीड अबाउट द एजियोट्रोप और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. हेयर इज द रिएक्शन विच रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. एंड इसका ये वाला रिएक्शन आप वापस से इस पर थोड़ा याद करिए कि हमने ये पढ़ा था. अब इसके हट के ये रिएक्शन है, मतलब ऐसे ही जुड़ा हुआ है, लिंक है थोड़ा कि ये पेक्यूलर थिंग्स हैं इसके HCl के बारे में. तो इफ़ यू विल get to remember this, then remember that also, that's a very important thing. Now coming back here, a mixture having 3 parts of concentrated sulfuric hydrochloric acid, 1 part of concentrated nitric acid is called as achiorrhea. See here it's also shown कि ये रेशियो 3 ले रखा हो, इसका रेशियो 1 ले रखा है, या फिर आप उल्टा कर सकते हो 1:3 का रेशियो यहाँ HNO3 रख लो, यहाँ पे HCl रख लो. बस जिसका रेशियो 3 लो, देन जिसका रेशियो यानी हम यहाँ पे HCl का ही रेशियो मत बदलना, प्लीज़ डू नॉट एक्सचेंज द रेशियो.
HCl हमेशा उसका रेशियो में 3 ही रहेगा, और ये जहाँ पर भी जो रेशियो 1 से ज़्यादा होता है वहाँ पे जस्ट पुट आउट अ बैलेंस देयर दैट नंबर विच इज़ नीड टू बी प्लेस्ड ओवर दैट कंपाउंड इन ऑर्डर टू give out a correct ratio of the things taken in the reaction in order to perform the experiment. Now NaCl, HNO3 HCl plus HNO3 gives NaCl plus H2O, 2H2O plus 2Cl. Nitrosyl chloride, this compound, yes, the question comes in my pre-board also, it came, and in board examination it might also come in form of one word. Give a reaction, what's that mixture called, in which consists of 3 parts of considered hydrochloric acid and 1 part of considered nitric acid. You might write aqua regia. और give a reaction in which NaCl is formed. You might write this whole reaction with whole concentration का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ concentration लिखना है, कहाँ आपको लिखना है रेशियो 1:3 या फिर 3:1, जहाँ पर भी आप HCl लिखोगे वहाँ पर 3 लगाना, वो लिखना है कैसे. और फिर उसके बाद ये जो मिक्सचर है एक्वा रीजिया, व्हाट्स द मेन purpose of this mixture? The main purpose is Au plus C3Cl gives AuCl3, means it can dissolve any kind of inert material like gold or platinum dissolve कर लेता है अपने अंदर. noble inert या noble material like metals ही होगा generally. gold हो जाता है इसमें dissolve, platinum is also dissolved in it, and it forms, when it combines with Au plus 3Cl कम देता है AuCl3, and Pt plus 4Cl gives PtCl4. Then coming to uses of hydrochloric acid, very important. Not means, हाँ आप एक बार rough view ले लो कि इसका use क्या है. laboratory reagent use होता है, and preparation of aqua regia. In manufacture of chlorides, chlorine, dry cell का, dry drug का, dyes का, drug का, और silver chloride का तो reaction नहीं पता है आपको. glucose from starch, industry to pickle steel, and तो रिफाइंड बोन ब्लैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, थोड़ा केमिकल रिएक्शन के उससे भी इम्पॉर्टेंट है, 1 वर्ड में भी आ जाता है. CaPO3 वोल्टोइस का है ये. और तो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है बिकॉज HCl डिजोल्व कैल्शियम फॉस्फेट को, और तभी बोन ब्लैक जो होता है प्योरीफाई हो जाएगा इसमें, बिकॉज उसमें कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है. तो और HCl में भी होता है, वो डिजोल्व कर लेता है, दैट्स व्हाई इट इज़ प्योरीफाइड. तो रिमूव रस्ट फ्रॉम आयरन शीट, रस्ट ये ले सकते हो आप, एक रिएक्शन याद कर लो. क्लीनिंग मटीरियल गैल्वनाइजिंग में, और एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स, टैनिंग, कैल्सिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री, और ये ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, ऐसे कोई रिएक्शन लिख दो, इट विल बी मोर देन इनफ. पिकलिंग ऑफ मेटल इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्साइड कोटिंग फ्रॉम सर्फेस ऑफ मेटल बिफोर दे आर पेंटेड, इलेक्ट्रोप्लेटेड और गैल्वनाइज. यस, रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, अपने आप में इट्स अ वेरी स्मॉल लैंग्वेज, आप याद कर लो बस जल्दी से. HCl एसिड, यस, इन फर्स्ट लेक्चर यू माइट हैव हेयर्ड फ्रॉम मी लाइन ऑफ म्यूकोसिया, उस पर HCl होता है. लाइन ऑफ म्यूकोसिया इन स्टमक, उस पर HCl जाता है. HCl एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कनाल कह लो, या फिर उससे जिससे कि फूड डाइजेशन में वो हेल्प करता है. मतलब ऐसा इन फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी नहीं है देन गो एंड वॉच इट शुरू से. एंड उसमें मैंने बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में कि HCl हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल्सो इन डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एंटर द एलिमेंट्री कनाल अलॉन्ग विद द फूड. मैंने फूड के बारे में और HCl के बारे में फर्स्ट वीडियो में आई हैव टोल्ड in the lecture. Okay, so here test for hydrogen chloride and hydrochloric acid. HCl gas possesses characteristic irritating smell, blisters जाते हैं स्किन पे, ये भी बात है. मतलब जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पढ़ा है, पंजेंट चोकिंग स्मेल पढ़ा है, ओडरलेस थोड़ा सा है वो, मतलब थोड़ा, हाँ. और फिर उसके बाद पंजेंट चोकिंग स्मेल पढ़ा है हम लोगों ने, और ब्लिस्टर्स जाते हैं कंसिडर्ड HCl अगर अपनी स्किन पे गिराओगे. और बाकी ये बात तो हमने पढ़ा ही है. NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl 2 गैस प्लस गैस का मिक्सचर है जो एक सॉलिड बनाता है. और AgNO3 प्लस HCl के AgCl प्लस HNO3, ये थिक कर्डी है, थिक कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट है, यस गिवन है. और AgCl ब्लैक हो जाता है जब वो सनलाइट में एक्सपोज होता है, और ज़्यादातर इट ब्रेक्स डाउन इनटू Ag and Cl2. And this precipitate is insoluble in nitric acid but soluble in ammonium hydroxide, greenish yellow gas. Chlorine is liberated. ये वाला reaction यहाँ पर भी पढ़ा था, we have studied here also. MnO2 वाला reaction here. और MnO2 plus 4 HCl gives MnCl2 plus 2 H2 plus Cl2. Need to remember this. A very important reaction in which chlorine is liberated, considered hydrochloric acid is used as an oxidizing agent. अच्छा, इसमें mainly oxidizing nature of HCl show हुआ है.
तो आप वो यहाँ पे you need to remember this equation. At least if you are not remembering the exact these equations, then at least remember these equations. They are very important. If they are basic equations of this chapter, if you will not remember this, you might tend to lose marks. And so if you will remember this and the basic logic behind any other equation like these equations, and then difference between thiosulfates and sulfates, and देन बेसिक लॉजिक बिहाइंड दीज इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट है कौन सी, और यहाँ पे CO2 है तो CO के हिसाब से अगर यहाँ पे Na2CO3 है तो यहाँ पे CO2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, एंड यहाँ पे SO3 है तो SO2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा प्लस H2O प्लस कंपाउंड, CO2 Na2CO3 है तो CO2 प्लस H2O प्लस कंपाउंड फॉर्म होगा. लाइक दिस इफ यू विल बी एबल टू कोप अप विद द चैप्टर. सो हियर वी आर डन विद द HCl chapter. In the next video we will start with NH3 or ammonia. So till then, bye bye, take care and start revising the chapter. And जल्द ही भी I am going to bring some questions with you, जो important question है, and share with you in order to revise HCl again and again. You can watch that video, that will be very small video, and that will be launched soon on YouTube. Have a nice day. Thank you.